Dear students, today we are reading the lesson The Portrait of a Lady written by Khuswant Singh. Khuswant Singh was a great writer, novelist and critic. In this chapter, The Portrait of Lady, all of you will get to know how the author has drawn a portrait of his grandmother with pen and tried to unfold the beautiful relationship with her, while telling the reader about his grandmother's appearance and daily basic activities. All of you get to know more about the appearance of the old grandmother, whose the author has described using beautiful metaphors like beautiful, young, and pretty. The author has thrown some light over the initial years when he used to live with his grandmother in the village and their life there and his life in the city became the turning point in their relationship. Now we will read the lesson line by line. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ और सभी लोगों की दादी माँ की तरह से ही एक बूढ़ी वृद्ध महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known for. वो उतनी ही बुजुर्ग, झुर्रीदार चेहरा लिए हुए एक महिला थी जिन्हें मैं 20 वर्षों से जानता था और उसी रूप में देख रहा था, उतनी ही बूढ़ी जितनी की आज. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं कि वो कभी बहुत खूबसूरत थी, युवा थी, and had even had a husband, और उनके पति भी थे. But that was hard to believe. लेकिन ये विश्वास करना मुश्किल था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर टंगी हुई थी. He wore a big turban and loose fitting clothes. वह एक बड़ी सी पगड़ी लगाए, ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए. His long white beard covered the best part of his chest. उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी उनके सीने तक लटकती थी. And he looked at least 100 years old. और वो पिक्चर में 100 वर्ष के लगभग दिखते थे. He did not look the sort of person who had have a wife or children. वो ऐसे व्यक्ति तरह से नहीं दिखाई देते थे जिनकी पत्नी हो, बच्चे हों. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वैसे दिखाई देते थे जिनके बहुत ज़्यादा पोते पोतियाँ हों. As for my grandmother being young and pretty, और जहाँ तक मेरे दादी माँ के युवा और सुंदर होने की बात थी, the thought was almost revolting. ये विचार ही विद्रोहात्मक था, विश्वास करने योग्य नहीं था. She often told us of the games he used to play as a child. वो अक्सर हम लोगों को उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिन्हें वो अपने बचपन में खेलती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part. जो कि उचित नहीं, उनकी उम्र को देखते हुए नहीं प्रतीत होता था और असम्मानजनक लगता था कि एक बूढ़ी महिला खेल के बारे में बात करती थी. And we treated it like the fables of the prophets. और वो हम सब इसको एक कहानी की तरह से, संतों की कहानियों की तरह से लेते थे. She used to tell us, जो हमें वो बताया करती थी. She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से ही छोटे कद की, मोटी और थोड़ी झुकी हुई. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर तमाम झुर्रियाँ, लाइनें थीं जो एक जगह से शुरू होकर के दूसरी जगह तक जाती थीं. No, we were certain she had always been as we had. और हमें कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वो हमेशा से ऐसी ही थीं. वो हमेशा से उतनी ही वृद्ध दिखाई देती थीं जितनी कि अभी वो प्रतीत अभी भी वैसी ही दिखाई देती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. 20 वर्षों से वो लगभग उसी उम्र की प्रतीत होती थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. वो कभी भी सुंदर नहीं, लेकिन हमेशा वो सुंदर थी. हियर राइटर कंपेयर्स प्रेटी एंड ब्यूटीफुल. शी वॉज pretty
used for her appearance, outer side appearance, and beautiful from her heart, inner beauty. She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop, on the other telling the beads of her rosary. वो कमरे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने एक हाथ को अपने कमर पे रखे हुए, क्योंकि वो झुकी हुई थी, स्टूप, बेंडिंग फॉरवर्ड, झुकी हुई चलती थी, एक हाथ में मोती की माला पकड़े हुए जाप किया करती थी. हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड अनटाइडली. उनके सफ़ेद सुनहरे बाल वो इधर उधर बिखरे रहते थे, बालों को संवार करके नहीं रखती थी. सिल्वर लॉक्स, लॉक्स इज हियर मीन्स हेयर. सिल्वर, वाइट कलर, ग्रे कलर, were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. और उनके पीले पड़े चेहरे पर, धसे हुए चेहरे पर, और उनके होठों से लगातार जैसे कोई मंत्र वो बोलती रहती थी, प्रार्थना किया करती थी. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. हाँ, वो खूबसूरत थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वो वैसे ही थी जैसे शीत ऋतु में पर्वतीय इलाके में हमें दृश्य दिखाई देता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सफ़ेद चादर बिछी हुई. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक शुद्ध पवित्रता की एक शांत फैलाव जैसे नज़र आता है. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. यस, माई ग्रैंड मदर was a beautiful landscape in the mountains. An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. एक शांति और संतुष्टि की पर्याय थी. उनका जीवन बहुत संतुष्ट और शांत. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी दादी माँ और मैं दोनों बहुत अच्छे मित्र. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी माँ के साथ छोड़ गए जब वो शहर में रहने के लिए गए. एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. और हम लोग लगातार तब से साथ रह रहे थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वो मुझे सुबह सवेरे उठाया करती और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो सुबह मुझे नहलाते समय लगातार एक गीत, एक प्रार्थना गाया करती थी, जिससे कि मैं उसे सुन सकूं और उसे दिल से अपना सकूं. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं सुनता था क्योंकि मुझे अपनी दादी माँ की आवाज़ बहुत पसंद थी. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. लेकिन कभी भी मैंने उसे सीखने की कोशिश नहीं की वो क्या गा रही. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड. फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट को, जिसे पहले से धुल के रखती थी, उस पर फेचिंग करती थी. एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक. और उस पर येलो चॉक से प्लास्टरिंग करती थी. ए टीनी अर्दन इंक पॉट एंड ए रेड पेन. और एक छोटा सा मिट्टी का दवात और एक लाल रंग की पेन मेरे लिए रखती थी. टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंग इट टू मी. उसे सब एक साथ बांध करके मुझे दे दिया कर. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल. और हल्के से नाश्ते के बाद इसमें एक बासी चपाती जिसमें थोड़ा सा मक्खन और शुगर स्प्रेड करके वो मुझे देती थी और फिर हम स्कूल जाते. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स. और बहुत सारी रोटियां वो गांव के कुत्तों के लिए रखा करती थी, जिसे वो खिलाया करती थी. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल के साथ ही गांव का मंदिर स्थित था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. वहाँ के पुजारी हमें वर्णमाला सिखाया करते थे और सुबह की प्रार्थना. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet. जबकि सारे बच्चे
बरामदा में दूसरी तरफ एक कतार से बैठे हुए वर्णमाला को गाते थे और द प्रेयर इन ए कोरस, या जो प्रार्थना वो बताते थे उसे एक साथ ग्रुप में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ अंदर बैठ करके धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी, स्क्रिप्चर्स। When we had both finished, we would walk back together। जो हम लोग सारे खत्म कर लेते थे दिनचर्या, तो हम लोग वापस घर के लिए लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल, और इस समय गांव के कुत्ते जो है हमें मंदिर के पास मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वो हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, भौंकते हुए, लड़ते हुए एक दूसरे के साथ। और द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो उन चपातियों के लिए जो हम उनके लिए फेंका करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। और जब हमारे माता पिता अच्छे तरीके से शहर में सेटल हो गए, तो उन्होंने हमें बुला भेजा। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और वो हमारे मित्रता में एक मोड़ साबित हुआ, एक परिवर्तन आया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती। I used to go to an English school in a motor bus। मैं एक अंग्रेजी स्कूल में एक मोटर बस में बैठ के जाया करता था। There were no dogs in the streets। और शहर की सड़कों पर कोई कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। और वो हमारे शहर के मकान के बरामदे में गौरैयों को ही दाना डालना शुरू कर दिया। As the years rolled by, we saw less of each other। और जैसे समय बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे को कम ही देखते थे, मिलते थे। और sometimes he contributed to wake me up and get me ready for school। कुछ समय तक तो वो मुझे उठाती रही और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती रही। When I came back, she would ask me। और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मुझसे पूछती थी what the teacher had taught me। टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning। मैं उसे अंग्रेजी के कुछ शब्द बताया करता था और कुछ ऐसी चीजें जो पश्चिमी विज्ञान की चीजें और ज्ञान की चीजें उसे बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, एसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। इससे वो दुखी हो जाया करती थी, क्योंकि अब वो मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जिन चीज़ों को वो हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और उसे निराशा मिलती थी कि वहाँ स्कूल में ईश्वर के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता था, और धार्मिक पुस्तकों के बारे में, वेदों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। One day I announced that we were being given music lessons। और एक दिन मैंने आके घर बताया कि हमें संगीत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। She was very disturbed। वो बहुत परेशान हो गई। To her music had lewd associations। उसके लिए संगीत का मतलब बड़े निचले दर्जे का काम। It was the monopoly of harlots and beggars। ये तो भिखारियों का काम है। And not meant for gentle folk। और सब लोगों के लिए संगीत नहीं है। She said nothing, but her silence meant disapproval। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी का मतलब ये था कि उसे ये चीज पसंद नहीं आई। She rarely talked to me after that। और उसके बाद उसने मुझसे यदा कदा ही बात कर। When I went up to university, I was given a room of my own। और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे मेरा कमरा खुद का मिल गया। The common link of friendship was stopped, snapped। और जो हमारे बीच में साधारण मित्रता थी वो भी खत्म हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। मेरी दादी माँ ने इस अलगाव को, इस अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग वेयर टू टॉक टू एनीवन। वो जहाँ चरखा चलाया करती थी वहाँ से यदा कदाई किसी से बात करने के लिए उठती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग। वो सुबह से लेकर के सूर्योदय से लेकर सूर्य ढलने तक वो अपने चरखे के साथ ही बैठी रहती एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स और प्रार्थनाएं गाती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर बाद कुछ क्षण के लिए वो विश्राम के लिए रुकती थी, गौरैयों को दाना डालने के लिए। वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स।
वो वरांडा में बैठकर ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड, और सैकड़ों सैकड़ों पक्षी जो है उसके चारों ओर आके इकट्ठे हो जाते, एंड क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। और उसके पास आकर के ची 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 तमाम स्वर सुनाई देता, एक शोरगुल सा मच जाता। बेडलम बेडलम, नॉट ऑफ साउंड, कंफ्यूज स्टेट ऑफ सेइंग। सम केम एंड पर्ched ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़िया तो आई उसके पैरों पे बैठ गई। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधे पे आके बैठ गई। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके सर पे ही आके बैठ गई। शी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे, वो मुस्कुराई, मुस्कुराती थी, लेकिन कभी भी उसने भगाया नहीं। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये समय उसके दिन का सबसे प्रसन्नचित्त कर देने वाला समय हुआ करता था मेरी दादी माँ। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं निश्चित तौर पे कह सकता था मेरी दादी माँ बहुत परेशान थी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे उससे 5 वर्षों के लिए दूर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र जो हो रही थी अब कोई कुछ कह नहीं सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन मेरी दादी माँ ऐसी नहीं थी, वो मेरे विदेश जाने को लेके ज़्यादा भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, उसने कुछ भी भाव नहीं दिखाया, कुछ कहा नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उसके होंठ प्रार्थना के लिए हिले। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसके दिमाग में प्रार्थना ही चल रही थी मेरी शुभकामना के लिए। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग हर द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उसकी उंगलियां मनके की माला को जप रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और शांत भाव से उसने मेरे मस्तक को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं वहां से चला तो वो उसका चुंबन मेरे मस्तिष्क पर एक गीला सा छाप छोड़ गया था, जो कि मेरा और उसके बीच में अंतिम शारीरिक मुलाकात की एक चिन्ह के रूप में अमिट छाप छोड़ गया। बट दैट वाज नॉट सो, इतना ही नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 वर्षों के बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उससे स्टेशन पे मिला। शी डिड नॉट लुक एट डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, वैसी ही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी उसके पास शब्दों ने कोई समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया, और मैं सुन सकता था उसकी प्रार्थनाओं को। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, उसका सबसे प्रसन्नचित कर देने वाला समय गौरैयों के साथ ही था। whom she fed longer, उस दिन ज्यादा समय तक उसने गौरैयों को दाना खिलाया। एंड विथ फ्रिवलस रिबक्स, और बीच बीच में झिड़कियां भी देती रही। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को कुछ बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना सा ढोलक ले आई, और सभी महिलाएं गाने लगी। और सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग ड्रम, और कई घंटों तक, फॉर सेवरल आवर्स द वुमेन ऑफ द नेबरहुड वर सिंगिंग विद दैट डिलिपिडेटेड ड्रम, उस पुरानी ढोलकी के साथ। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वीर सैनिकों के वापस लौटने का गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर शेडिंग, हम लोगों को कहना पड़ा कि रुक जाओ दादी माँ, तबीयत खराब हो जाएगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और यही वो पहली बार मैंने देखा इस दिन दादी माँ ने प्रार्थना नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, दूसरी सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने बताया कि हल्का बुखार है और वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग तरीके से सोच रही थी।
She told us that her end was near. उन्होंने हमें बताया मृत्यु नजदीक है, उनका अंतिम समय आ गया है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her, और उन्होंने बताया कि अब केवल कुछ ही घंटे बचे हैं उनके जीवन के. She had omitted to pray. उसने प्रार्थना नहीं की. She was not going to waste any more time talking to us. और उन्होंने अब बिल्कुल भी हम लोगों से बात करने का समय व्यर्थ बिताने का नहीं निश्चित किया और ईश्वर को याद करने लगे. We protested, but she ignored our protest. हम लोगों ने विरोध किया लेकिन उन्होंने हम लोगों के विरोध को विरोध किया. She lay peacefully, शांत पूर्वक वो लेटी रही in bed, praying and telling her beads, बिस्तर पर और अपने मनके के माला को जपती रही, प्रार्थना करती रही. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और अभी हम लोग कुछ संदेह कर ही पाते, उसके होंठ हिलने बंद हो गए और मनके की माला उसके हाथों से छूट के नीचे गिर गई निर्जीव उंगलियों से. ये पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस और उसके पीले चेहरे पर एक शांति का भाव था. एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमें पता चल गया था उसकी मृत्यु हो चुकी. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इज कस्टमरी, हम लोगों ने उसे बेड से उठाया जैसे कि प्रथा है, परंपरा है. लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लिटा दिया. एंड कवर्ड हर विथ रेड श्राउड, और एक लाल कपड़े से ढक दिया. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर फ्यूनरल, और कुछ समय घंटों के शोक के बाद, रोने के बाद, हम लोगों ने उसके अंतिम क्रियाकर्म को करने की व्यवस्था के लिए अकेले छोड़कर हम लोग निकल आए. वी वेंट टू इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम लोग उसके कमरे में गए. विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रीमेटेड, एक बड़ा सा स्ट्रेचर लेकर के उसे हम लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं. द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम विथ एंड बरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. सूर्य ढल रहा था और सूर्य की रोशनी, सुनहरी रोशनी उसके कमरे में, बरामदे से होती कमरे में पड़ रही थी. वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग अभी आधे रास्ते में ही थे, बरामदे में रुक गए. ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड, पूरे बरामदे में, उसके कमरे में जहाँ पे वो लेटी हुई थी, जहाँ पे हम लोगों ने उसे लिटा रखा था. एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, उस पर हम लोगों ने लाल कपड़ा उड़ा रखा था. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों हजार गोरियां आकर के फर्श पर बैठी हुई थी. उसके आसपास पूरे गौरियों का झुंड बैठा हुआ था. There was no chirping, कोई भी गोरिया आवाज नहीं कर रही थी. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. हम लोगों ने उन पक्षियों के लिए बड़ा दुख महसूस किया कि वो भी शोक ग्रस्त हैं, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड ले आई खाने के लिए. सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, मेरी माँ उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी. एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें उनके खाने के लिए उनके सामने डाल दिया. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरियों ने बिल्कुल भी ब्रेड की तरफ नहीं देखा, ध्यान ही नहीं दिया. व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, तो हम लोग अपनी दादी माँ के शव को वहाँ से ले गए. दे फ्लू अवे क्वाइटली, शांति पूर्वक वहाँ से उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर ने आकर के उन ब्रेड क्रम्स को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया.